இளமையில் நாம் செய்ய நினைத்ததை முதுமையில் செய்ய இயலுமே என்று வாருங்கள் வாருங்கள் நண்பர்களே, கூடுங்கள் கேளுங்கள் நண்பர்களே. குவைவானில் ஒன்றாய் கூடி சிந்திப்போம், கேட்போம், மகிழ்வோம். சிந்திப்போம், கேட்போம், மகிழ்வோம். This podcast is brought to you as a joint initiative between Anubhav, the National Institute of Social Defense, Ministry of Social Justice and Empowerment, and Media for Community Foundation. Project coordinators Dr. R. Sridhar and Alok Verma. Radio coordinators Pooja Murada, Kaushalya and Sai Sudha. Producers Kovai Vani, Kovai Care Retirement Communities. If you are a senior citizen and need help, contact our Elder Helpline 14567 between 8 a.m. and 8 p.m. We promise to help you lead a better life. I repeat, 14567 between 8 a.m. and 8 p.m. வணக்கம். Greetings from Koivani to all listeners. We have with us Shri Suresh Gupta, a retired banker, artist, and a passionate published poet from Muzaffarnagar, Uttar Pradesh. He'll be presenting 3 of his poems on mother and 2 on growing old. The first, Wo Thi To, But She Existed, was composed after his mother passed away, having been bedridden for over 5 years. He describes her various failings, and though she had lost her memory and was just a bag of bones, her mere presence, he said, was a very comforting feeling. The next poem, Maa Kahan Se Launga, From Where Can I Get My Mother, recounts that when mother was alive, she was taken for granted and did not get the attention she deserved, but the void created by her death brought forth the stark reality that she cannot be brought back. The poem, Pyari Maa, Loving Mother, relives the moments of comfort only a mother can give. The next 2 poems on old age, Umr Ko Yun Hi Haraiye, Overcome Age Thus, suggests that seniors may take up new hobbies and activities and enjoy childlike innocence, spreading love and happiness. In the last poem, Jashan Budhape Ka, celebrating age, he points out that we will all be going when the time comes, and that we should consider growing old as a boon and not a curse. Over to Suresh Gupta. सभी को नमस्कार। मैं सुरेश गुप्ता मुजफ्फरनगर से अपनी एक रचना के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ, जिसका शीर्षक है वो थी तो। रचना पढ़ने से पहले मैं इसकी थोड़ी सी भूमिका आपको बता दूँ। मेरी अम्मा पिछले 5-6 साल से बिस्तर पर थीं। याददाश्त उनकी जा चुकी थी, हम में से किसी को पहचानती नहीं थी, फिर भी दिखाई देती थी कि हाँ अम्मा हैं। किंतु अभी 2-2.5 महीना पहले वो हमें छोड़कर चली गई हैं। तब मैंने लिखा है, जैसी भी थी वो थी तो, वो थी तो, झूठी थी या सच्ची थी, चाहे कानों की कच्ची थी। झूठी थी या सच्ची थी, चाहे कानों की कच्ची थी, उम्र के भंवर में फंसकर बन गई बिल्कुल बच्ची थी। जैसी भी थी वो थी तो, वो थी तो, हड्डियों की सूखी ठठरी थी, चाहे शिकुओं की गठरी थी। हड्डियों की सूखी ठठरी थी, चाहे शिकुओं की गठरी थी, पर परिवार को जोड़ने वाली वो एक मजबूत पटरी थी। जैसी भी थी वो थी तो, वो थी तो, बात बात में मुँह बनाती थी, हर काम में नुक्स बताती थी। बात बात में मुँह बनाती थी, हर काम में नुक्स बताती थी। नाराज कितनी भी हो लेकिन
आशीर्वादों की झड़ी लगाती थी। जैसी भी थी वो थी तो वो थी तो ममता का वो आंचल कहाँ पाऊंगा, किसे अपनी तकलीफ़ें बतलाऊंगा। ममता का वो आंचल कहाँ पाऊंगा, किसे अपनी तकलीफ़ें बतलाऊंगा। वियोग तो सह लूँगा लेकिन अब माँ कहकर किसे बुलाऊंगा, अब माँ कहकर किसे बुलाऊंगा। जैसी भी थी वो थी तो वो थी तो वो थी तो माँ कहाँ से लाऊंगा। जीवन भर भागता रहा मैं कि पैसा खूब कमाऊंगा। जीवन भर भागता रहा मैं कि पैसा खूब कमाऊंगा। चिंता नहीं की परिवार की, बड़ा आदमी बन जाऊंगा। अभी मर गई है मेरी माँ, इंतज़ार मेरा करते करते। अभी मर गई है मेरी माँ, इंतज़ार मेरा करते करते। कोई बताए ज़रा मुझे, अब माँ कहाँ से लाऊंगा। दौलत कितनी भी कमाऊं, रोटी तो दो ही खाऊंगा। सोचा नहीं था कभी कि एक दिन बहुत पछताऊंगा। चली गई है माँ मेरी छोड़कर मुझे सदा के लिए। चली गई है माँ मेरी छोड़कर मुझे सदा के लिए। कोई तो समझाए मुझे, अब माँ कहाँ से लाऊंगा। अब किसे सीने के जख्म मैं अपने दिखलाऊंगा। किसके कदमों में बैठूंगा, अब किससे आशीष पाऊंगा। सिर धुनना ही रह गई है अब तो किस्मत मेरी। सिर धुनना ही रह गई है अब तो किस्मत मेरी। कुछ भी पा सकता हूँ पर माँ कहाँ से लाऊंगा। हर दिन तड़फूंगा और जीवन भर आंसू बहाऊंगा। किसको अब माँ कहूँगा, वो शीतल आंचल कहाँ पाऊंगा। कभी कदर नहीं की मैंने उसकी जब तक जीवित रही वो। कभी कदर नहीं की मैंने उसकी जब तक जीवित रही वो। अब क्यों पूछता हूँ सबसे कि माँ कहाँ से लाऊंगा, माँ कहाँ से लाऊंगा। धन्यवाद। आप सबके सामने मैं अपनी एक रचना पढ़ना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सबका आशीर्वाद मुझे मिलेगा। मेरी रचना का शीर्षक है प्यारी माँ। तुम कहते हो कि जख्म भर जाएंगे वक्त के साथ। तुम कहते हो कि जख्म भर जाएंगे वक्त के साथ। माँ को भूल जाओगे वक्त के साथ। जब भी देखता हूँ किसी बच्चे को अपनी माँ की उंगली पकड़कर चलते हुए, याद आ जाता है मुझे मेरा अपना बचपना। जब भी देखता हूँ किसी बच्चे को अपनी माँ की उंगली पकड़कर चलते हुए, याद आ जाता है मुझे मेरा अपना बचपना। उंगली पकड़कर माँ की वो ठुमक ठुमक कर चलना, माँ का थपकियाँ देकर सुलाना, नींद ना आने पर उसका वो लोरियाँ सुनाना। सूरज जब भी जुर्रत करता था मुझे तपिश पहुँचाने की, माँ तान देती थी आंचल को बादल बनाकर मेरे लिए। सूरज जब भी जुर्रत करता था मुझे तपिश पहुँचाने की, माँ तान देती थी आंचल को बादल बनाकर मेरे लिए। जब भी जिद करता था मैं चाँद को पाने की, माँ उतार देती थी चाँद को पानी भरे कटोरे में मेरे लिए। माँ तो बसी है मेरे सीने में धड़कन बनकर, बहती है वह मुझ में सांसें बनकर। कैसे भूल सकता हूँ मैं माँ का वो चिंतित चेहरा। कैसे भूल सकता हूँ मैं माँ का वो चिंतित चेहरा। मेरी तबीयत खराब हो जाने पर टकटकी लगाए खड़े रहना उसका दरवाजे पर, मेरे घर से बाहर जाने पर। जख्म भले ही भर जाएं वक्त के साथ, जख्म भले ही भर जाएं वक्त के साथ, किंतु कैसे भूल पाऊंगा माँ को। वह तो अब भी मेरे सपनों में आती है, प्यार से मेरे सिर पर हाथ फिराती है, बरसती है मुझ पर चांदनी बनकर, महकाती है मेरी रूह को
खुशबू बनकर। कैसे भूल पाऊंगा माँ को, वह तो अब भी मेरे सपनों में आती है, प्यार से मेरे सिर पर हाथ फिराती है, बरसती है मुझ पर चांदनी बनकर और महकाती है मेरी रूह को खुशबू बनकर। अंतिम समय में मेरे मुंह से ईश्वर का नाम निकलेगा अथवा नहीं। अंतिम समय में मेरे मुंह से ईश्वर का नाम निकलेगा अथवा नहीं, मैं नहीं जानता, किंतु इतना अवश्य जानता हूँ, मेरे अंतिम शब्द होंगे माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मेरी माँ। मेरी रचना का शीर्षक है उम्र को यूं हराइए। कुछ शौक नए अपनाइए, निश्चल बच्चे बन जाइए। कुछ शौक नए अपनाइए, निश्चल बच्चे बन जाइए। खुले दिल मिलिए मिलाइए, उम्र को फिर यूं हराइए। गिले शिकवे भुलाइए, फिक्र पे गर्द उड़ाइए, सब पर प्यार लुटाइए, उम्र को फिर यूं हराइए। मदद को हाथ बढ़ाइए, मदद को हाथ बढ़ाइए, जग दर्शन कर आइए, थोड़े में काम चलाइए, उम्र को फिर यूं हराइए। ठहाका मारकर खिलखिलाइए, ठुमका धीरे से लगाइए, गीत प्यार भरा गुनगुनाइए, उम्र को फिर यूं हराइए। मेरी रचना का शीर्षक है जश्न बुढ़ापे का। मतलब बुढ़ापे को हम श्राप क्यों समझें? सुनिए, आओ बुढ़ापे का जश्न मनाएं, श्राप नहीं इसे वरदान बनाएं। आओ बुढ़ापे का जश्न मनाएं, श्राप नहीं इसे वरदान बनाएं। चले जाएंगे जब वक्त आएगा, चले जाएंगे जब वक्त आएगा, अभी तो सुंदर स्वप्न सजाएं। आओ बुढ़ापे का जश्न मनाएं। हर वक्त बुढ़ापे का रोना क्यों, हर वक्त बुढ़ापे का रोना क्यों, अतीत को सिर पर ढोना क्यों। दिल खोल नया अपनाना सीखें, दिल खोल नया अपनाना सीखें, वर्तमान से मन बहलाना सीखें। और देखिए, उपेक्षाओं पर दिल दुखाना क्यों, उपेक्षाओं पर दिल दुखाना क्यों, उम्र के आगे सिर झुकाना क्यों। नई पीढ़ी संग चलना सीखें, हाय हेलो भी कहना सीखें। राग द्वेष में हमें फंसना क्यों, राग द्वेष में हमें फंसना क्यों, पराये दोषों पे हमें हंसना क्यों। मान अपमान से हटना सीखें, हरि नाम हरदम रटना सीखें। अपने पराये में हमें भटकना क्यों, अपने पराये में हमें भटकना क्यों, पुरानी यादों में रोज अटकना क्यों। पत्नी से झूठ मूठ झगड़ना सीखें, पत्नी से झूठ मूठ झगड़ना सीखें, और गप्पे भी खूब लड़ाना सीखें। आखिरी बंद है, कुछ हंसकर कुछ गाकर जीवन बिताएं, अदब से सम्मान से सबको अपना बनाएं। कुछ हंसकर कुछ गाकर जीवन बिताएं, अदब से सम्मान से सबको अपना बनाएं। बिना शर्त प्यार बांटे जग में, हर दिल में खुशबू से बस जाएं, हर दिल में खुशबू से बस जाएं। धन्यवाद। Dhanyavad, and thank you, Suresh ji, for sharing your thoughts. With the hope that our listeners enjoyed this podcast, this is Revati Bhaskar signing off till we meet again. இந்த வலையொலி அனுபவ் தேசிய சமூக பாதுகாப்பு நிறுவனம், சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் அமைச்சகம் மற்றும் மீடியா ஃபார் கம்யூனிட்டி ஃபவுண்டேஷன் இவர்களின் கூட்டு முயற்சியாக உங்களிடம் கொண்டு வரப்பட்டது. திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் டாக்டர் ஆர் ஸ்ரீதர் மற்றும் ஆலோக் வர்மா அவர்கள். வானொலி ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் பூஜா முராடா, கௌசல்யா மற்றும் சாய் சுதா அவர்கள். தயாரிப்பாளர்கள் கோவை வாணி, கோவை கேர் ரிட்டையர்மெண்ட் கம்யூனிட்டிஸ். நீங்கள் ஒரு மூத்த குடிமகனாக இருந்து உதவி தேவைப்பட்டால் எங்கள் எல்டர்லைன் ஹெல்ப் லைனை தொலைபேசி எண் 145667 இல் தொடர்பு கொள்ளவும். காலை 8 மணி முதல் இரவு 8 மணி வரை. ஒரு சிறந்த வாழ்க்கையை வாழ உங்களுக்கு உதவி செய்ய நாங்கள் உறுதி அளிக்கிறோம். மறுபடியும் கேளுங்கள், தொலைபேசி எண் 145667 காலை 8 மணி முதல் இரவு 8 மணி வரை. That's all for today, folks. Be safe. Fight COVID with 2 vaccinations.
Wear a mask when you go out. Keep safe distance. Observe proper hygiene. We must win. We will win. Thank you.